So I think we have done some numericals also on this, right? Significant figures और scientific notation दोनों पे हो गया था. Yes? हाँ. So now, ठीक है. Let's move ahead, ठीक है, for understanding, ठीक है, the part of it. हमने ये numericals नहीं किए थे ना? अच्छा, हाँ. The one which I given you for the homework, go ahead. Have you done this? दो दिए हैं शायद. Yes, numericals दो दिए थे. Have you done those numericals? अच्छा सेम नहीं थे. चलेगा. So we'll start solving with this part. ठीक है? Okay. Now the first numerical, ठीक है, for today. So compound with molar mass 159 was found to contain 39.62% copper and 20.13% sulfur. Suggest the molecular formula of the compound. ठीक है. So क्या rule क्या है? What is the first rule? We mention what are the elements present, right ना? ठीक है. So there are two elements, copper है and sulfur है, right? Okay. Now what is the percentage of these both elements? Copper is how much? 39.62. And how much is sulfur? 20.13. We convert it into a gram, so this becomes 39.62 and this becomes 20.13. Okay. Then we'll go for the number of moles. So 39.62 divided by how much you should take? 63.5. It is they have given directly as round figure as 63. Okay. Then for the now one more thing. Okay. We missed one step. If you add a percentage of copper and sulfur, how much it is coming down to? 39.62 plus 20.13. कितना आएगा? हाँ. 59.75. Right now, this will come down to 59.75. ठीक है. So balance is oxygen. ठीक है. So if I subtract this value minus 100, ठीक है, कितना आएगा? So it will be 10 minus 5 will be 5, 9 minus 7 will be 2, and 0 and 4. So it is 40.25%. ठीक है. We'll take it as 40.25 gram. ठीक है. Next इसमें क्या आएगा? 20.13 divided by sulfur कितना आएगा? 32. Then 40.25, ठीक है, divided by यहाँ पे आएगा 16. ठीक है. Okay. Now just divide this and let me know the number of moles. कितना आना चाहिए? Roughly it is 39.62 upon 63. ठीक है. So if we do this, six six are 36. So 2s are. This would come down to 0.628. So here 20.13 divided by 32.
So the lowest one is 0.628. Okay. Now, if we divide, dividing by lowest value of n, what you will get? 0.628 divided by 0.628, 0.629 divided by 0.629, and 2.515 divided by 0.629. So इसका वैल्यू आएगा exactly 1. This would be and near about to 1 because ये 8 है और ये 9 है, ठीक है. And for this, ठीक है, we can get it as an 6 4s are 24, ठीक है. So if you multiply it by 4, be 629. Roughly it comes down to 4. ठीक है. So you get the empirical formula, ठीक है, as Cu S is to O, that is 1 is to 1 is to 4. ठीक है. Now we have to find out the molecular formula. ठीक है. So molecular formula क्या होता है? How to find out the molecular formula? It is n factor, ठीक है, into an empirical formula, right ना? Okay, ये ऐसे चलता है. It is n factor into empirical formula. ठीक है. Now an empirical formula, ठीक है, what we got? It is an CuSO4. ठीक है. n factor कैसे find out करें? So n factor will be equal to molecular formula weight divided by empirical formula weight. ठीक है. So molecular formula weight कितना है? It is 159. ठीक है. What will be the empirical formula weight? So find out करो तो कॉपर कितना है? 63. 63 plus 32 कितना आएगा? 95. 95 plus it will be 64. ठीक है. Because 16 fours are ना. ठीक है. So 95 plus 64 it will be 159. उतना ही आएगा ना. ठीक है. So this is 159. That means 10 factor is 1. Therefore your molecular formula will be equal to 1 into CuSO4, that is equal to CuSO4. ठीक है. Right? Got this? Now take down this one. Next ये क्वेश्चन लिख के ले लो. ठीक है. Now almost everyone knows that कि सॉल्व कैसे करना है. ठीक है. स्टेप्स क्या क्या है. ठीक है.
Done? Okay. So second क्वेश्चन लिख के लिया नहीं second one. The second one you can take fun homework, okay? Done? Huh? Okay? Okay? So let's move for the next. Okay. Now we have to start with this concept about stoichiometric problems. ठीक है? यहाँ पे सबसे ज़्यादा ठीक है we get a little bit confused. ठीक है? So what is meant by a stoichiometric problem? ठीक है? So when we say stoichiometric problem या फिर a part of an stoichiometric ठीक है numericals okay stoichiometric numericals मतलब we should be able to or we have to apply the concept about moles ठीक है in a such a way कि अगर कुछ एक चीज नहीं दिया है then you will be able to calculate the ठीक है that thing from the given set of data ठीक है so normally जो stoichiometric equation and stoichiometric problems होते हैं they are of three types ठीक है first one is considered as based on mass ठीक है to mass relationship ठीक है the second one is based on mass to volume relationship ठीक है and the third one is based on a volume to volume relationship ठीक है so this
are the three types of an stoichiometric problems, or you can say numericals. ठीक है, so they are classified in this way: problems based on mass volume and volume relationship. ठीक है, अभी वॉल्यूम और मास इसका जो रिलेशनशिप है दैट इज बेस्ड ऑन द मोल पार्ट. ठीक है, कि एटॉमिक वेट एंड अगर आपका सब्सटेंस गैसियस है तो उसका गैसियस मोलर वॉल्यूम कितना होता है? गैसियस मोलर वॉल्यूम, हाँ, गैसियस मोलर वॉल्यूम कितना है? व्हाट इज द गैसियस मोलर वॉल्यूम? हाँ, इट इज 22.4 लीटर्स. ठीक है, एट एसटीपी, राइट ना? ठीक है, देन सो हाउ टू सॉल्व दिस स्टोइचियोमेट्रिक न्यूमेरिकल्स? टू स्टेप्स है. ठीक है, सो दीज आर द स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप इज you write down the balanced chemical equation, ठीक है, representing a chemical reaction. Then write down the number of moles. ठीक है, followed by, ठीक है, then relative masses or volumes of the reactant products below the respective formulae. And relative masses or volume should be calculated from the respective formula. Mass referring to the conditions of STP. So अगर इसका एक example लेते हैं, let's say, ठीक है, we are taking an example, ठीक है, for combustion, okay, of ethane C2H6, ठीक है, in air, हमारा घर का रिएक्शन. ठीक है, when we open or when we put on the gas, ठीक है, उसके अंदर होता है predominantly मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन. ठीक है, ये चार गैसेस का मिक्सचर है वो. ठीक है, नाउ ऑफ दैट इथेन इज गेटिंग कंबस्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एयर. ठीक है, सो हाउ इट विल हैपन? यू विल बी हैविंग अ C2H6, ठीक है, प्लस एन O2. ठीक है, सो दिस इज आल्सो अ गैस, दिस इज आल्सो अ गैस. ठीक है, एंड यू हीट इट. ओके, so you get the formation of carbon dioxide, and along with that you get the formation of an water, H2O. So carbon dioxide is a gas and H2O will be a liquid. Okay, now this reaction, let's say we are carrying out at STP. Okay, so STP यानी it is carried out at 0 degree Celsius and a pressure of 1 bar. ठीक है, ये है STP condition. ठीक है, so अभी फर्स्ट स्टेप क्या है? वी हैव टू बैलेंस दिस. ठीक है, सो टेक आउट, कैन यू बैलेंस कर सकते हो क्या इसको? हाँ, क्या आएगा बैलेंसिंग के लिए? करो तो. हाँ, राइट डाउन द इक्वेशन. ठीक है, हेडिंग देना. ठीक है, स्टोइचियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स, एंड देन डायरेक्टली राइट डाउन दिस पार्ट ऑफ द इक्वेशन. एग्जांपल ले लो. ठीक है, problems were based on नहीं, ये आपको जो इंफॉर्मेशन के लिए. ठीक है, अगर आपको चाहिए तो ये स्टेप्स भी लिख सकते हो, अदरवाइज इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड देम, ठीक है, तो डायरेक्टली इक्वेशन चालू करो. ठीक है, पहला स्टेप बैलेंसिंग, उसके नीचे हम लिखेंगे उसका मॉलिक्यूलर वेट, फिर उसका मॉलिक्यूलर वॉल्यूम. ठीक है, बस उतना ही करना है. ठीक है, दैट विल गिव अस एन आइडिया कि उन इसमें, ठीक है, कितने कितने अमाउंट ऑफ या फिर कितने कितने वॉल्यूम्स ऑफ प्रोडक्ट बन रहे हैं. ठीक है, राइट. Now everywhere you don't have to write down the rules or something. ठीक है, आपको अगर अंडरस्टैंड हो रहे हैं, ठीक है, एक्लेमनाइज कर लो और अप्लाई कर लो, बिकॉज रूल्स नहीं पूछेंगे, सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स पूछेंगे. ठीक है, अगर कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है then you can write down the rules. ठीक है, राइट, बट आई वुड सजेस्ट कि अभी प्रोएक्टिव हो जाओ. समझ में आ रहा है? ठीक है ना, तो बस सीधा न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर. न्यूमेरिकल्स के मार्क्स है, रूल्स लिखने के मार्क्स नहीं है. गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, सो अंडरस्टैंड कर लो एंड जस्ट गिव योर बेस्ट. ओके,
Then Yes. so बैलेंसिंग हुआ. हाँ, so what I should take, यहाँ पे क्या आएगा, twice CO2, 2 कार्बन है, ठीक है. Then हाइड्रोजन कितने हैं, 6. So I'll write down thrice H2O. तो हाइड्रोजन हो गए बैलेंस. ना ऑप्शन कितने चाहिए, 2 2s are 4 plus 3 7. यानी कि here I have to mention it either 3.5, ठीक है, और the whole reaction equation I have to multiply it with 2 again. So I will get that is twice C2H6 gas plus 7O2 gas, ठीक है, on heating gives 4 CO2 gas plus 6 H2O liquid, ठीक है. बैलेंसिंग हो गया, राइट. हाँ, सबका आया. यस, कहीं पे एरर हुआ है, रेक्टिफाई करो. डन. हाँ, नाउ द फर्स्ट स्टेप, ठीक है, वी हैव टू मेंशन द नंबर ऑफ मोल्स एंड द रिलेटिव मासेस और वॉल्यूम्स ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है, एंड प्रोडक्ट्स बिलो द रिस्पेक्टिव फॉर्मूले, ठीक है. तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, वी राइट डाउन द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है. नाउ टेल मी, ठीक है, फॉर इथेन कितने मोल्स हो गए यहाँ पे, हाँ, कितने दिख रहे हैं आपको, हाँ, C2H6 कितने मोल्स है, मोल्स कैसे देखते हैं, 10th स्टैंडर्ड भूल गए. यस, हाउ टू राइट डाउन, हाउ मच मोल्स आर देयर, हाँ, कितने मोल्स है यहाँ पे, हाँ, मोल्स नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, दिस आर द नंबर ऑफ मोल्स ना. ये हम क्यों लिखते हैं 2 और 7, ये है नंबर ऑफ मोल्स फॉर दैट रिएक्शन. हाँ, नहीं, ये 2 ही आएगा, ठीक है, कुछ मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना है. नंबर ऑफ मोल्स यानी कि बैलेंस इक्वेशन में जो हम स्टोइचियोमेट्रिक नंबर्स डालते हैं, ये नंबर्स को बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक नंबर्स, और वो है नंबर ऑफ मोल्स. इसका मीनिंग क्या है, दिस इज 2 मोल्स ऑफ इथेन reacting with 7 moles of an oxygen to form 4 moles of carbon dioxide and 6 moles of water, ठीक है, राइट. ये हो गए नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है. नाउ टेल मी इसका वेट कितना होगा अभी, ठीक है, हाउ मच शुड बी द वेट. हाँ, अभी आपको पता है वेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, हाँ, नंबर ऑफ मोल्स इनटू इट्स एटॉमिक वेट, राइट ना. यस और नो, याद है कि नहीं है, ओके, लेट्स हैव अ लुक, ठीक है. सो नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, N2, ठीक है, या फिर N भी अगर लेते हैं, ठीक है, जरूरी कि N2 ही लेना है. सो N इज इक्वल टू वेट अपॉन एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, ये फॉर्मूला है, राइट ना, ठीक है. सो हमें क्या निकालना है, वेट निकालना है. नंबर ऑफ मोल्स मिला है 2, ठीक है. अभी एटॉमिक वेट की जगह पे क्या आएगा, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है. एंड टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू वर देयर फॉर दोस फॉर्मूलाज ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी, थे उस पे, नहीं थे, शुरू में किया था. सो डू वन थिंग, ठीक है, पहले कीप दिस असाइड, यहां तक लिख दो, पहले मोल्स लिख दो, ठीक है. ये समझ में आ गया अभी मोल्स क्या होता है, ये 10th का पार्ट है, ठीक है. बैलेंसिंग करने के बाद व्हाटएवर द नंबर्स वी गेट इन द फ्रंट ऑफ दैट मॉलिक्यूल, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है. इज इट क्लियर, ठीक है. हुआ लिख के, हाँ, done. Okay, now let me go to the next part, that is the part of what we call it as an concentration terms. Okay, so concentration terms में, ठीक है, ये आपको सारे कंसेप्ट आएंगे, that is about percentage by mass, ठीक है, second percentage by volume, third number of moles, ठीक है, fourth is about the molarity, normality,
and last one the mole fraction. ठीक है? So these are some 6 to 7 terms which we have to learn. So first we'll start with, ठीक है, that is percentage by mass. Okay? इसको ऐसे भी represent करते हैं, it is percentage W by W. Okay? Now it is simple. It is as like हम अपने marks से calculate करते हैं the number of marks obtained upon total number of marks into 100, right ना? वैसे ही सपोज अभी कंसंट्रेशन देखना है, सो कंसंट्रेशन किसको अप्लाई होता है? दिस अप्लाइड ओनली फॉर द सॉल्यूशंस, ठीक है, बिकॉज नॉर्मली जब भी आप कोई प्योर चीज लेते हो तो उसका कंसंट्रेशन नहीं देखते हो, ठीक है, वो तो 100% प्योर होता है ना, ठीक है. सो कंसंट्रेशन टर्म्स इज एप्लीकेबल फॉर सॉल्यूशंस, ठीक है. अभी सॉल्यूशंस में, ठीक है, व्हाट इज द टू बेसिक कंपोनेंट? सॉल्यूशन किससे बनता है? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है. सो एंड सॉल्यूशन is always made up of two base component, that is a solute, ठीक है, and a solvent, ठीक है. अभी solute और solvent में से सबसे बड़ा component कौन होता है? Solvent, because suppose पानी में आपने शक्कर डाला, so water will be the solvent and sugar will be the solute, right now. So solvent will be the component 1, ठीक है, and solute will be the component 2, ठीक है. सो ये सॉल्वेंट के जितने पैरामीटर्स होंगे, ठीक है, लेट्स से वेट ऑफ एन सॉल्वेंट W1, वॉल्यूम ऑफ एन सॉल्वेंट V1, डेंसिटी ऑफ एन सॉल्वेंट ρ1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन सॉल्वेंट N1, मोलारिटी और उसके पहले मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एन सॉल्वेंट MWT1, मोलारिटी ऑफ द सॉल्वेंट M1, ठीक है, राइट. देन so all the parameters जितने भी आते हैं उसके, ठीक है, they all are represented by this way, that is W1 and V1. फिर solute के लिए यूज करेंगे 2, so ये होगा weight 2, volume 2, density 2, number of moles 2, ठीक है, molecular weight, ठीक है, 2. so यहाँ पे I'll remove this part of a molarity, because molarity normally सोल्यूट का ही फाइंड आउट करते हैं कि हाउ मच मोलार द कंसंट्रेशन ऑफ दैट सोल्यूट इज. ओके, ठीक. नाउ ये हो गया द बेस कांसेप्ट अबाउट द सॉल्यूशन, ठीक है. इसका जो बेसिक कंसंट्रेशन टर्म्स है, ठीक है, राइट, दैट स्टार्ट्स विद परसेंटेज बाय मास, ठीक है. सो परसेंटेज बाय मास का फार्मूला क्या होगा? दैट विल बी द वेट ऑफ एन सोल्यूट, ठीक है. सो वेट ऑफ एन सोल्यूट क्या होगा? अभी W2 अपॉन, यहाँ पे आएगा अभी टोटल, हमारे टोटल मार्क्स लेते हैं ना हम, नीचे ऊपर ऑप्टेन मार्क्स होते हैं, नीचे टोटल मार्क्स होते हैं, ठीक है. सो यहाँ पे टोटल मार्क्स की जगह यहाँ पे क्या आएगा? टोटल वेट ऑफ द सॉल्वेंट सॉल्यूशन, ठीक है. सो क्या आएगा? W1 प्लस W2, सो इट विल बी WT, ठीक है. WT इज द टोटल वेट ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है. सो ये जो वैल्यू आएगी दैट विल बी नोन एज परसेंटेज W बाय W, ठीक है. सो इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है? सो व्हाटएवर सॉलिड सॉल्यूशंस हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल यू नो घर पे अगर पाउडर है, ठीक है, राइट, एनी पाउडर, लेट्स से टी पाउडर, ठीक है, राइट. तो टी पाउडर का अगर पैकेट देखोगे तो उसके सारे जो कॉन्सेंट्रेशन उसके अंदर कुछ भी है, ठीक है, फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं, कलरिंग एजेंट्स हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट फैट्स है, ऑल आर गिवन एज परसेंटेज W by W, ठीक है. फिर सेकंड है हमारा सॉल्ट, नमक, ठीक है. नमक के अंदर आयोडीन होता है, ठीक है. तो उसके ऊपर आप पैकेट में देखोगे तो जितने भी अंदर पैरामीटर्स है परसेंटेज लिखा होगा और W by W, ठीक है. फिर यू कैन टेक योर एग्जांपल ऑफ आटा जो अभी रेडीमेड आता है वो, ठीक है, राइट. उसके ऊपर भी जो जो इंग्रेडिएंट्स है अंदर, दे ऑल आर मेंशन्ड एज परसेंटेज W by W. सो इट इज एप्लीकेबल ओनली मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर द सॉलिड सॉल्यूशंस, ठीक है. सो ये हो गया परसेंटेज बाय मास. ओके, सो लेट्स टेक, ठीक है, कैलकुलेट परसेंटेज बाय मास ऑफ 20 ग्राम caustic dissolved, ठीक है, in 80 ग्राम of water, right, to make its aqueous
solution. Okay, so let's solve this. Okay, ये पहला फॉर्मूला लिख दो, परसेंटेज बाय मास. Okay, let's go step by step. Done? Now can we start ahead? ठीक है, so let's go for the part of given. So tell me क्या क्या दिया हुआ है इस न्यूमेरिकल में. हाँ, अभी आप बताओगे उसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे. W. हाँ, NaOH और वाटर में विच इज सोल्यूट. NaOH बिकॉज वो कम है ना, ठीक है, राइट, और 80 ग्राम वाटर को ज्यादा है, ठीक है. सो एंड NaOH इज माय सोल्यूट, ठीक है. सो इट विल बी W2, ठीक है, कितना है 20 ग्राम, ठीक है. देन W1 कितना है 80 ग्राम, ठीक है. व्हाट वी नीड WT का फॉर्मूला क्या है W1 प्लस W2, ठीक है. देन व्हाट वी हैव टू फाइंड, ठीक है, दैट इज परसेंटेज W बाय W, ठीक है. इसका फॉर्मूला क्या होगा. सो फॉर्मूला विल बी परसेंटेज W बाय W इज इक्वल टू वेट ऑफ एन सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ एन सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है. सो W2 का कितना है वेट 20 डिवाइड बाय, अभी WT कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 100. am I right? So 20 divided by 100 into 100, that will be how much, 20% W by W, because this two will get cancelled. am I right? Yes. हाँ, लिखो इसे. Done?
सेकेंड वाला सॉल्व कर सकते हो क्या? Done? So calculate percentage W by W of 10 gram glucose, molar mass 180, dissolved in 190 gram water to get its aqueous solution. ठीक है? So yes. So अभी मुझे गिवन में बताओ क्या क्या दिया है? हाँ, W2 कितना दिया है? Yes, anyone? 190. W2 हाँ, जो कम है वो W2 है ना, राइट ना? जो कम है वो है सोल्यूट और जो ज्यादा है वो है सॉल्वेंट. सो W2 इज 10. हाँ, ठीक है. देन व्हाट इज W1? 190. ठीक है. सो अभी WT कितना होगा? W1 प्लस हाँ, that will be 200. ठीक है. फाइंड आउट क्या करना है? परसेंटेज W by W. सेम फॉर्मूला. सो फॉर्मूला विल बी इक्वल टू परसेंटेज W by W is equal to W2 upon WT into 100. ठीक है. करो तो. How much you are getting? 5% W by W. That is 5% W by W. ठीक है. Always remember the first step towards excellency is the basics. ठीक है. कितना भी easy लगे, ठीक है. Try to do it out in a proper formulation in a very systematic way. ठीक है. राइट, स्टेप्स के मार्क्स होते हैं. ओके, डन. कैन आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? सो नेक्स्ट पार्ट है इन अ कंसंट्रेशन टर्म, दैट इज परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम. ठीक है, इसे कहते हैं, ठीक है, दिस टर्मिनोलॉजी इज परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम. Okay, so the formula is same but only slightly modified. So it is equal to weight of a solute upon volume of a solution into 100. ठीक है. So when you calculate a percentage mass by volume, most of the time आपके क्वेश्चन में डेंसिटी दिया हुआ होगा. ठीक है, right? So based on that you will get this percentage W by V or the percentage mass by volume. Okay. So for this, let's take a numerical, an example. So if we can take a 20 gram sucrose, ठीक है, was dissolved, ठीक है, in and 100 gram of its aqueous solution forming के बजाय solution having density, ठीक है, 0.84 ग्राम per cm cube. ठीक है. डिटरमाइन percentage W by W and percentage W by V. ठीक है. अभी ये सॉल्व करना है. ठीक है. So how to solve this? So first part is given. Okay, क्या आएगा given में? Now tell me, इसमें W2 कितना है? 20 grams. Correct. So now W2 is equal to 20 gram. How much is
WT, हाँ W1 दिया है क्या, ध्यान से पढ़ना, W1 दिया है क्या, नहीं, क्या बोला उन्होंने, 100 ग्राम ऑफ इट्स एक्वियस सॉल्यूशन, मतलब सीधा सॉल्यूशन का वेट दिया है, सो इट इज नॉट अ W1, इट इज अ WT, सो दिस इज WT दैट इज इक्वल टू 100 ग्राम, ठीक है। देन व्हाट वी नीड, सो सब ये तो मिल गया है, ठीक है, वी नीड टू फाइंड, ठीक है, दैट इज टू पार्ट्स, फर्स्ट है परसेंटेज W by W, ठीक है, एंड द सेकंड पार्ट इज, ओके, दैट इज परसेंटेज W by V, ओके। इसका भी फॉर्मूला कैसे होगा, हाँ, विच फॉर्मूला यू वुड चूज, हाँ, पहले क्या होगा, परसेंटेज W by W विल बी W2 अपॉन WT into 100, ठीक है। देन सेकेंड क्या होगा, ठीक है, परसेंटेज W by V, ठीक है, सो परसेंटेज W by V इज इक्वल टू W2 डिवाइड बाय VT into 100, राइट ना। अभी WT तो दिया है, VT कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है, एंड टू कैलकुलेट दिस VT वी नीड टू टेक द हेल्प ऑफ डेंसिटी, ठीक है। सो रो पैरामीटर इज हाउ मच, 0.84 ग्राम पर cm क्यूब, ठीक है, राइट। सो वी आर गोइंग टू यूज दिस डेंसिटी टू गेट द VT। पहले W ये बताओ तो परसेंटेज W by W कितना आएगा, देखो, ऑलरेडी भी कर सकते हो, 20%, राइट ना, 20 by 100 into 100 20%, राइट। सो इसका आपको आंसर आएगा दैट इज 20 डिवाइडेड बाय 100 into 100, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 20% W by W, ठीक है। नाउ परसेंटेज W by V ये कैसे निकालोगे, हाँ, परसेंटेज W by V, VT निकालना होगा, ठीक है, VT के लिए क्या लेना पड़ेगा, डेंसिटी, ठीक है। सो टू गेट VT we need to first take into consideration the density, so rho is equal to what, weight, that is WT upon VT, ठीक है। so VT will be equal to WT divided by density, ठीक है। WT का वैल्यू कितना है अभी, how much it is given, 100, ठीक है, so 100 डिवाइडेड बाय 0.84, ठीक है, so इसको करो तो डिवाइड, देखो कितना आएगा, you will have this way now, that is 100 and 2 zeros, और यहाँ पे आएगा 84, ठीक है, करो तो, समझ में आ गया 84 कैसे आया, ठीक है। यहाँ का डेसिमल मैंने 2 डिजिट राइट में शिफ्ट किया, तो यहाँ का भी डेसिमल मैंने 2 डिजिट राइट में शिफ्ट किया, ठीक है, तो कैंसिल हो जाएंगे ना, राइट में शिफ्ट होना मतलब 10 to the power -2 होगा, राइट, इन द न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, एंड बोथ विल गेट कैंसिल्ड, ठीक है। कितना आ रहा है, करो तो, बेटा कितना है वॉल्यूम, यस बॉयज, नहीं कितना है, करो कितना है, 0.
क्या वॉल्यूम वीटी वॉल्यूम 0 पॉइंट आया नहीं, कैसे आया 0 पॉइंट? और तो आपको कितना आया? हाँ, अरे बेसिक है डिवीजन, ठीक है। हाँ राइट, 1, हाँ इट इज 84 ones are 84, so balance will be 60 right now. So 84 again ones are 84, ठीक है। So 10 minus 4 will be 6, ठीक है, and 15 minus 8 will be 7, ठीक है। So it will be 760, so it will be 9s are 9 4s are 36, 9 8s are 72 plus 3 it will be 75, ठीक है। So it will be 40, ठीक है। So 0, ठीक है, right? So it should be around 119.0. I will take it as a 8 5s are 40, so 04, ठीक है। ये आएगा वॉल्यूम एज एन ml, ठीक है, और इट विल बी cm क्यूब, ठीक है। 0 पॉइंट कैसे आ रहा था, इम्प्रूव करना होगा, ठीक है, राइट। नहीं तो फिर मुझे ये करके देना होगा कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस। हाँ, बेसिक डिवीजन होना ही चाहिए, रेट। हाँ, कैलकुलेटर पे चेक मत करना, ठीक है, खुद पे भरोसा रखो, ठीक है। एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेंगे, राइट। ये पता है ना, रिसेंट केसेस, आई डोंट नो आपको अवेयर हो कि नहीं हो, राइट। एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के सुपरविजन में मोबाइल्स आर गेटिंग कॉट, ठीक है, सॉक्स में मोबाइल्स मिल रहे हैं, ठीक है। आयरनी इज दैट वो मोबाइल्स यार इस पे भी नहीं, साइलेंट पे भी नहीं था और बज रहा था, पकड़ा गया। नो वन वुड हैव थॉट, यू नो, कि बोर्ड एग्जाम्स में बच्चे सॉक्स में मोबाइल लेके बैठ रहे हैं। क्यों हो रहा है, कभी सोचा व्हाई दिस हैपेंड? हमने हमारा वी हैव डन दिस पार्ट ऑफ एनालिसिस, ठीक है। यही आदत, ठीक है, एवरीथिंग टू गूगल आउट, ठीक है, हमारी थिंकिंग कैपेसिटी को कम कर देता है, ठीक है। डोंट गूगल आउट, एक महीने के लिए प्रैक्टिस में लेना फॉर 1 month, ठीक है। डोंट गूगल एनी आंसर, कोई भी आंसर को गूगल मत करना, ठीक है। नॉट ओनली गूगल, कुछ भी नहीं, बिंग, इंटरनेट पे ढूंढो ही मत, खुद से सॉल्व करो, ठीक है। यस, नाउ परसेंटेज W by B निकालो, तो कितना आएगा? W2 सामने है, BT सामने है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन सॉल्व दिस, ठीक है, और देखते हैं कितना जल्दी होता है। लेट्स मूव। आया? एनीवन हैज गॉट? किसने सॉल्व किया? फॉर्मूला इज इन फ्रंट ऑफ यू, W2 दिया हुआ है, BT अभी मिल गया। हाँ, बॉयज लास्ट कुछ मिला? करो तो। W2 कितना है? 20, करेक्ट, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है अभी? 119.04, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। सो जब भी डेसिमल्स होते हैं हम क्या करते हैं? we take it a round figure, right ना? तो यहाँ पे क्या होगा? this decimal will shift it 2 digits, और यहाँ का भी डेसिमल हम 2 डिजिट शिफ्ट करेंगे towards right, ठीक है। so you will be getting that is 2000, अभी डेसिमल डिवाइडेड बाय 11904 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है, राइट। अब ये डिवीजन आसान होगा, ठीक है, राइट। ट्राई करो तो। So
सो वी कैन इवन मल्टीप्लाई बाय द 100 और यहाँ पे और दो जीरोस आप डाल सकते हो। कितना आ रहा है वैल्यू देखो। जीरो पॉइंट नहीं आएगा, डेफिनेटली नहीं। 11904 है ना ये, तो ये 1 से आएगा 1 1, ठीक है, 904, ठीक है राइट। अभी आगे चलो, देखो कितना आ रहा है। हाँ कितना है, हाँ ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। आई एम गेटिंग इट फेल्ट कि 10th में भी मैथ्स आपको ऑप्शन में था। नहीं नहीं था तो इसको बहुत इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। Yes, anyone got it, boys? कुछ मिला? चलो 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 जल्दी। सो 80960, ठीक है, आपका रिमाइंडर आएगा, ठीक है राइट। नाउ 11904 है, ठीक है। सो 11904 रफली इफ आई टेक इट एज एन 6 टाइम्स, ठीक है राइट। सो इट विल बी 6 4s are 24, ठीक है, then it will be 2, then 6 9s are, ठीक है, it would be 54, ठीक है, 4 and 5, 6 on the 6 plus 5 is 11, ठीक है, 6 on the 6 plus 1 7, ठीक है। So it will be 10 minus 4 6, 5 minus 2 3, ठीक है, then it will be 9 minus 4 5, 10 minus 1 9, and it will be 0. So 95360. Now it will be in decimal, ठीक है। So 95360 and 11904. So roughly I can take it as an 8 times, ठीक है right। So because see whenever I do this bigger calculations, शायद आपको क्या लगे कि सर इतना कर कैसे पा रहे, ठीक है। So I do the logic part कि जो पहले दो डिजिट्स है, ठीक है, और उसके बाद के डिजिट्स पे ध्यान दो, ठीक है। I know that अभी यहाँ पे ही it is 95, ठीक है right, and here it is 11. So 11 9s are 99, definitely it will be less than 9. 11 8s are 88, ठीक है, 88 और फिर 8 9s are 72. 88 plus 7 will be how much? It will be roughly around, ठीक है 95. So वो 95 है राइट ना, और नेक्स्ट डिजिट क्या है 2 आएगा मोस्टली, 2 या उसके 0 है, सो 2 ही आएगा, ठीक है। सो देयरफॉर आई मेक डाउन इट इज एन 8s राइट, सो इट विल बी 8, ओके। नाउ so this was यहाँ पे 9 था, okay। So now this will be 8s are 8 4s are, ठीक है 32, 2 3, ठीक है, 8 9s are 72, then 8 1s are 8 plus 7, ठीक है, that is 15 and it is 9, so it is something around to 16.8, ठीक है, definitely it will be 0, so आगे जाएगा इसका वैल्यू, it will be 16.80
परसेंटेज W बाय V डॉट इज पर समझ में आ गया। ओके सो ये है परसेंटेज बाय V। सो दिस थिंग्स इसके लिए आगे चल के मैं आपको लॉग भी बताऊंगा, ठीक है, बट व्हाट आई वांट इज कि आपको ये कैलकुलस पर इंप्रूव हो, ठीक है, एंड बीइंग एट यंग स्टेज ये बड़े नंबर्स देख के फियर होना इट्स एन कॉमन थिंग, बट जब तक हम ये क्लियर आउट नहीं करेंगे हमारे एंट्रेंस के मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, डैम श्योर, ठीक है, राइट, बिकॉज वहां पे तो सेकंड्स में काम होता है, ठीक है, सो दैट्स द रीजन पर्पसफुली हैव केप्ट द लॉग एट बे, ठीक है, जैसे हमारा धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है, राइट, कैलकुलेशंस एंड न्यूमेरिकल्स आई विल बी स्लोली पुटिंग यू द लॉग, एग्जाम में लॉग देते हैं, ठीक है, सो दे विल गिव यू द लॉग एंड दे विल यू नो वो इजी हो जाता है, बट जब तक अरिथमेटिक पार्ट नहीं होता आपका स्पीड नहीं बढ़ेगा, ठीक है, सो राइट इट डाउन हो गया लिख के। Done? Huh? Now let's go for the next terminology. ठीक है, that is about the number of moles. ठीक है, तो ये थर्ड टर्म है, ठीक है, it is termed as a number of moles. So हमने मोल कंसेप्ट में ऑलरेडी, ठीक है, इसके बारे में पढ़ा है. So number of moles is denoted by small n. ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है small n से. Now if it is a number of moles of a solute, then it is represented as an N2. If the number of moles of a solvent is represented as N1. ठीक है, so इस N2 और N1 में, ठीक है, the formulas remain same, that is equal to weight of a solute upon molecular weight of a solute, and N1 is a weight of a solvent upon molecular weight of a solvent. ठीक है, so these are the formulas. इसका यूनिट जो है, ठीक है, दैट इज मोल्स, ठीक है, और इसका सिंबल जो है दैट इज MOL, ठीक है, so this is how it is represented, ठीक है, ये है नंबर ऑफ मोल्स. नाउ along with the number of moles, ठीक है, there is a fourth quantity that is molarity, ठीक है, so molarity is represented by the capital letter M, ठीक है, and it is the most widely used, ठीक है, concentration term, ठीक है, so it is the most widely used, ठीक है, concentration terms, ठीक है, आप इसको widely बोल सकते हो या फिर you can use the word commonly, both are same. ये मैं इसके लिए दे रहा हूँ because MCQ में definitely there will be one question, ठीक है, the most commonly used term for the concentration of a solution is molarity, ठीक है. Now what is the formula for molarity? So molarity of a solute, ठीक है, it is given as that is N2 upon VT in liter, ठीक है, ये है मोलारिटी का फॉर्मूला. अब इसका यूनिट क्या होगा? सो यूनिट विल बी, इट इज मोल, बिकॉज ये मोल का यूनिट है पर लीटर, और also known as molar, ठीक है, so these are the units for the molarity, ठीक है, it is mole per liter or known as molar. Okay, इतना समझ में आ गया, ठीक है. Now let's solve some numericals based on this, ठीक है. So determine, ठीक है, molarity of an aqueous NaOH solution where 100 gram of NaOH is dissolved, ठीक है, in 500 ml of its aqueous solution, ठीक है.
लिखो तो। जी कहते डन से हाँ वो मोलरिटी करके सबने दिया नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वीटी लीटर। ये इन लीटर है, वीटी इन लीटर, ठीक है। ये वीटी इन लीटर, दैट इज टोटल वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। फाइन। हाँ हो गया, क्वेश्चन लिखे हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट इज गिवन? यस, गिवन क्या है? टेल मी। बाय नाउ यू विल बी अवेयर गिवन क्या है। हाँ अच्छा, सोल्यूट दिया है NaOH, उसका वेट दिया है क्या? हाँ W2 इज गिवन, हाउ मच इट इज? 100 ग्राम, ठीक है। फिर और क्या दिया है? हाँ वेट का यूनिट क्या होता है? ग्राम, राइट ना। 500 तो ml है, राइट। सो इट इज वॉल्यूम नॉट अ वेट, ठीक है। अभी वॉल्यूम किसका है? सॉल्यूशन का, यानी VT, राइट ना। सो ये होगा VT, ठीक है। VT इज इक्वल टू 500 ml, ठीक है। सो what we have to find? We have to find molarity, ठीक है। So we have to find, ठीक है, that is molarity, okay। So molarity, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा अभी? So formula will be equal to number of moles upon VT in liter, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला क्या है? N2 is equal to W2 upon molecular weight 2, ठीक है, right। Now you know how to calculate the molecular weight 2, that is of an NaOH. So that is atomic weight of an sodium, ठीक है, into number of sodium atom plus atomic weight of an oxygen into number of oxygen atom plus atomic weight of an hydrogen into number of hydrogen atom, ठीक है। करो तो फाइंड आउट कितना आएगा, देखो molecular weight 40 grams, correct। So it is 23, ठीक है, into 1 plus 16 into 1 plus 1 into 1, so it is 23 plus 16 plus 1,
23 plus 17 the value is 40 ग्राम, ठीक है। सो N2 का वैल्यू बताओ मुझे अभी, 100 डिवाइडेड बाय 40, हाँ कितना आ रहा है? करेक्ट 2.5, ठीक है। सो ये आएगा 2.5। यूनिट क्या लिखूं मैं? यूनिट शुड बी नहीं मोल्स, हाँ यूनिट शुड बी मोल्स, ठीक है। अभी मोलारिटी क्या आएगा? 2.5 अपॉन, देखो VT इन लीटर्स चाहिए और हमें दिया है मिलीलीटर, ठीक है। नाउ टेल मी, हाँ सो वी हैव टू डू द कन्वर्जन, ठीक है। कन्वर्जन इसका करना है, दैट इज VT इज इक्वल टू 500 ml, ठीक है। सो वी नो दैट, ठीक है, इट इज 1000 ml, ठीक है, is equal to 1 liter. So 500 ml will be equal to half of this 0.5 liter. So you will have molarity is equal to, ठीक है, that is 2.5 divided by 0.5, ठीक है। This we can take it as 25 upon 5, ठीक है। करो तो 5 मोलार, या फिर यूनिट होगा मोल पर लीटर, ठीक है, राइट। Done. Okay. Now the next term, हो गया सबका? Okay, done. Okay. Now there are two more terms, ठीक है, for concentration. एक है molality and the next one is normality, ठीक है। इसमें से normality वाला जो है थोड़ा सा difficult है understand करने के लिए, but molality is easy, ठीक है। अभी हमने molality में क्या देखा था? It is number of moles of a solute upon VT in liter, that is volume of a solution in liter. Now most of the time what happens? Now the ambient temperature let's say is 25, ठीक है, around 25-24 का टेम्परेचर है, ठीक है। सो ये जो वॉल्यूम आप मेजर करोगे एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इमेजिन करो कि यही एक्सपेरिमेंट, ठीक है, हम लेके गए इन जम्मू, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। वहां पे तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के करीब है, राइट। इफ यू गो टू एन एक्सट्रीम नॉर्थ लाइक सियाचिन, ठीक है, वहां पे तो टेम्परेचर इज फर्दर डाउन, -55 है, ठीक है। और हमें पता है व्हेन वी फ्रीज द वाटर क्या होता है? वॉल्यूम एक्सपांड होता है, राइट ना। इसी वजह से आइस फ्लोट्स ऑन द वाटर, राइट। ओके, अगर आप बॉटल में पानी भर के अगर डीप फ्रीज में रखते हो तो बॉटल से फूल जाता है ना, बिकॉज आइस, ठीक है, व्हेन द इट्स सॉलिडिफिकेशन ऑकर्स, नॉर्मली हर लिक्विड का क्या होता है? वॉल्यूम कम हो जाता है, ठीक है, बट नॉट विद द आइस, ठीक है, ठीक है। पानी में क्या होता है? वॉल्यूम एक्सपांड्स, ठीक है। सो जो मोलार सॉल्यूशन आप 25 पे करोगे, वही अगर आप 0 पे चले गए, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब वो मोलारिटी कम होगा। गेटिंग माय पॉइंट? सो व्हेनेवर द कॉन्सेंट्रेशंस आर कैरिड आउट इन टर्म्स ऑफ एन मोलारिटी, they are prone to change with the temperature, ठीक है। To avoid this we have taken or we have got the new terms, ठीक है, that is molality. Okay, now what is molality? Molality is denoted by small m, ठीक है। So molality of a solution
इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सोल्यूट अपॉन W1 इन kg। ठीक है, यहाँ पे क्या लिया हमने, वेट। अभी वो J&K हो, ठीक है, या अर्थ का कोई भी एरिया हो, ठीक है, irrespective of the temperature, gravitational pull तो सेम है, ठीक है, so it is not going to get affected, so therefore molarity term is used for all the scientific calculation जहाँ पे आपको concentration constant रखना है। Is it clear? ठीक है, so इसका जो यूनिट है, ठीक है, यूनिट फॉर दिस टर्म, ठीक है, इट इज मोलर, ठीक है, और इट इज मोल पर केजी, ठीक है, ये इसका यूनिट है। नाउ दिस टर्मिनोलॉजी ऑफ एन मोलैरिटी, ठीक है, इसके बाद एक और टर्म है, ठीक है, दैट इज नॉर्मैलिटी। ठीक है, सो व्हाट इज नॉर्मैलिटी? नॉर्मैलिटी इज डिनोटेड एज कैपिटल N। ठीक है, अभी नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था? इट इज वेट ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या फिर एटॉमिक वेट। नॉर्मैलिटी में इट इज कुछ डाउट है लास्ट बेंच? हाँ, कुछ डाउट है? मुझे वो आई थिंक आई एम गेटिंग समथिंग कि आपको डाउट है और डिस्कसिंग समथिंग, राइट? क्लियर है? हाँ, ओके। सो नॉर्मैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस, ठीक है, ऑफ अ सोल्यूट, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये है फॉर्मूला फॉर द नॉर्मैलिटी। नाउ कम्स एन इंटरेस्टिंग पार्ट कि नंबर ऑफ मोल्स तो पता है, व्हाट इज मीन बाय नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस? ठीक है, राइट? सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस, ठीक है, इज इक्वल टू वेट ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन इट्स इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या था? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस के लिए क्या होगा? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। नाउ कम्स द क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय इक्विवेलेंट वेट? ठीक है, ये वर्ड सुना है पहले? हाँ, नहीं। ठीक है, सो इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, ये इक्विवेलेंट वेट अगर नहीं होता, वी वुड हैव नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड कि रिएक्शन किस प्रोपोर्शन में हो रहा है। ठीक है, इसका पहले लेट यू नो द डेफिनेशन पार्ट, ठीक है, देन इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, इज द वेट that displaces, ठीक है, 1.008 part by weight of hydrogen, ठीक है, 8.00, ठीक है, parts by weight of oxygen and 35.5 parts by weight of chlorine। ठीक है, इसे कहते हैं इक्विवेलेंट वेट। मतलब इक्विवेलेंट वेट वो होता है कोई भी रिएक्शन में कि जिसमें आपको 1.008 पार्ट बाय वेट हाइड्रोजन निकलेगा, 8 पार्ट्स बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन निकलेगा एंड 35.5 पार्ट्स बाय वेट ऑफ क्लोरीन निकलेगा। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अंडरस्टैंडिंग रिएक्शन कौन से रेट में होते हैं। ठीक है, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेट, एक होता है मॉलिक्यूलर वेट और दूसरा होता है इक्विवेलेंट वेट। अभी हमेशा हम रिएक्शन कैलकुलेट नहीं करते, व्हाट वी डू, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, राइट, ऑफ अ सब्सटेंस, ओके, इज नॉर्मली इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एसिडिटी और बेसिसिटी, ठीक है, ऑफ अ सब्सटेंस। ओके, इसी को नॉर्मैलिटी को हम मोलारिटी से भी कंपेयर करते हैं। ठीक है, राइट? सो व्हेन वी से अ नॉर्मैलिटी, ठीक है, नॉर्मैलिटी कैन बी ऑब्टेन इवन फ्रॉम द मोलारिटी। सो नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी, ठीक है, इनटू एन एसिडिटी और बेसिसिटी, ठीक है, ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, सो राइट डाउन दिस फॉर्मूला। इसकी
देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, नॉर्मल और ठीक है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस पर लीटर। So जब लैब में जाओगे you will get the different types of solution, 5 molar, 10 molar, as well as normal, 1 normal, 2 normal, 3 normal, like that. Done? Now you got all the concentration terms, ठीक है, right? एक लास्ट टर्म है, ठीक है, which is equally important, and that is part of a mole fraction. Okay, इसके नाम में लिखा है it is mole fraction. It is denoted by x2, ठीक है, and it is denoted by x1. So हम normally 2 किसके लिए यूज करते हैं, हाँ, for the solute, right ना, और 1 किसके लिए यूज करते हैं for the solvent, ठीक है. So whenever there is a binary mixture, like एक solute और एक solvent, वहाँ पे इसका फॉर्मूला ऐसे चलता है, ठीक है, x2 is equal to number of moles of that component divided by the total number of moles, that is n1 plus n2, and x1 is equal to number of moles of solvent divided by the total number of moles of all the other components, ठीक है. इसका कोई यूनिट नहीं है, it's a unitless quantity, ठीक है. So x1 and x2, ठीक है, x1 and x2 का always, ठीक है, x1 plus x2 is equal to 1, ठीक है. So अगर आपको x2 मिल गया तो x1 is 1 minus x1, ठीक है, या x1 मिल गया तो x2 is 1 minus x2, ठीक है. So ये 3 फॉर्मूलास लिख दो for the mole fraction. Done? Now we'll go back to that part of the stoichiometric calculations, ठीक है, right, and we'll see this, ठीक है. यहाँ पे हमने, ठीक है, now can you determine the weight of this each compound, कैसे determine होगा, number of moles है 2, ठीक है, right. So इसको हमें रिवर्स में लेना होगा. फॉर्मूला क्या है, that is number of moles, ठीक है, is equal to weight upon molecular weight, ठीक है. So अभी मुझे weight निकालना है. So weight will be equal to what? Weight will be equal to, that is number of moles, ठीक है, into molecular weight, ठीक है. So tell me for C2H6 molecular weight कितना होगा, कार्बन का कितना है, it is 12, ठीक है, हाइड्रोजन is 1, so it will be 12 2 24 plus 6 कितना आएगा, 30 आएगा ना, ठीक है.
सो वेट यहाँ पे कितना आएगा 30 into 2 दैट इज 60 ग्राम, ठीक है। फॉर ऑक्सीजन टेल मी कितना वेट आएगा अभी, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट, हाँ एटॉमिक वेट इसका 16 है, लेकिन ये O2 है ना, ठीक है। सो O2 यानी कितना हो जाएगा 32 into 7, हाँ राइट, कितना, हाँ 32 into 7, हाँ 7 2 जा 14, ठीक है, हाँ and 7 is 21 plus it will be 1 that will be 224, am I right? Yes. हाँ Yes. फिर CO2 में कार्बन है 12 एंड O2 का आएगा 32, सो 12 plus 32 कितना हो जाएगा 44 into 4 176, right ना, so it will be 176 ग्राम, ठीक है। H2O हाइड्रोजन का 1 into 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 18 6 जा हाँ 108, ठीक है राइट ग्राम। सो ये हो गया वेट, राइट। नाउ एक्सेप्ट माय वाटर जो कि लिक्विड है, ठीक है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम फॉर द रेस्ट ऑफ द पैरामीटर्स, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यू हैव टू मेंशन द वॉल्यूम, ठीक है। नाउ फॉर C2H6 गैस है और 2 मोल्स है, 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है एट STP, मैंने लिखा है STP, हाँ व्हाट इज द वॉल्यूम एक्वायर्ड बाय द 1 मोल ऑफ अ गैस 4, सो 2 मोल से कितना होगा into 2 44.8, सो इसका आएगा 44.8, क्या लिखूं ml या लीटर, ठीक है। नाउ ऑक्सीजन गैस है 7 टाइम्स, ठीक है, 7 into 22.4 करो तो कितना आएगा, हाँ कितना आ रहा है 156.8, ठीक है 156.8 क्या आएगा लीटर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, सो 4 into 22.4 कितना होगा 89.6, ठीक है। सो इट विल बी 89.6 लीटर। नाउ इंटरेस्टिंग पार्ट, वाटर का डेंसिटी होता है 1, ठीक है। So can you tell me 108 gram of water will be equal to how much volume of water? हाँ डेंसिटी फैक्टर 1 है, तो जितना वेट उतना ही, ठीक है वॉल्यूम, बट वॉल्यूम होगा ग्राम में अगर है, so it will be in ml, so it will be 108 ml, ठीक है, getting it? समझ में आ रहा है? Okay, so this is how, ठीक है, the part goes, ठीक है। ये होते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, ठीक है। यू विल गेट द क्वेश्चन, इसमें है क्वेश्चंस और भी, ठीक है। दैट इज डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इफ 10 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड विद एक्सेस ऑफ एयर, ठीक है राइट। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपको, ठीक है। बट यू शुड बी एबल टू कैरी आउट दिस कन्वर्जंस, ठीक है, ओरली एज वेल एज एफिशिएंटली, तभी ये प्रॉपर्ली सॉल्व होगा। ओके, इज इट डन? राइट, so hot over here, ठीक है। So next इसमें we'll start with the numerical, ठीक है।